students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study markets around us. Learning port, types of market, wholesale market, retail market and our everyday needs, role of intermediaries. Okay. A market is defined as a place where goods, services and information are exchanged for money. Markets consist of producers, consumers and traders. People who produce goods are called producers. They make goods are consumers. Consumers are people who buy goods and services for their personal use. The people who act as intermediaries between producers and consumers are called traders. It is through traders that goods are supplied to the market. Market vary in terms of their size and the range of goods and services that are traded there. Okay, देखिए मार्केट क्या होती है, जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ मनी होता है. ओके, मार्केट कंसिस्ट करता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स. ओके, यहाँ के लोग जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है जो गुड्स बेचते हैं. ओके, और वो कंज्यूमर्स बनाते हैं. ओके, गुड्स बनाते हैं, दे मेक गुड्स फॉर कंज्यूमर्स. ओके, और यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए जो लोगों को सामान चाहिए होता है वो लोग आते हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे ख़रीदते हैं. ओके, नाउ जो इंटरमीडिएट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में उनको बोला जाता है ट्रेडर्स. ओके, और जो ट्रेडर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं मार्केट में. ओके, ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने सामान को सप्लाई करते हैं मार्केट में. ओके, टाइप्स ऑफ द मार्केट. Factors affecting people access to market. People's access to market depends on the following factors: availability of goods and services. The availability of different things in a single market is the most important factor which affect people's access in the market. Nowadays people have very little time and they want to purchase different things on daily use from the nearest market. If there is a post office and a hospital nearby, it becomes an एडिड अट्रैक्शन. देखिए मार्केट एरिया जो होता है वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए. ठीक है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है नियर बाय, तो वो अट्रैक्शन ऐड कर देता है. ओके, कन्वीनियंस. डिस्टेंस factor is very important in our lives. Market located in close proximity to residential colonies attract a large number of customers than a distantly located market. देखिए जो डिस्टेंट फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. मार्केट जो कि क्लोज हमारे प्रॉक्सिमिटी के बिल्कुल क्लोज बनी हुई है, लोकेटेड है, तो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वहाँ पे जाते हैं. ओके, कस्टमर्स वहाँ पे जाते हैं. क्रेडिट. पीपल जनरली बाय थिंग्स बाय पेइंग बाय कैश, बट देयर आर सम पीपल स्पेशली service class people who like to buy things on the credit and pay the amount when they are paid salaries. देखिए लोग क्या करते हैं, यूजुअली जाते हैं, सामान खरीदते हैं और कैश देके अपना सामान ले लेते हैं. ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब तक उनकी सैलरी नहीं आती तो क्रेडिट पे अपना सामान खरीद के लेके आते हैं. ओके, क्वालिटी. All customers prefer to buy quality goods. Avoid shopkeepers who supply goods of inferior quality. They do not hesitate to pay a little more for quality goods and services. Okay, सारे customers जो होते हैं वो quality goods लेते हैं. Okay, shopkeeper से जो goods की supply होती है वो inferior quality की होती है. Price. Shopkeeper should change genuine price for items. No customer would buy things from the shopkeeper who charges more than the same item. In this world of competition, genuine pricing matters a lot. देखिए गुड पे जो प्राइसिंग लिखी है अगर उससे ज़्यादा प्राइसिंग पे अगर शॉपकीपर सामान बेच रहा है तो कोई भी कस्टमर उसको नहीं खरीदेगा. जितना प्राइस लिखा है उतने पे ही वो खरीदेंगे. ओके, इनकम साइकिल. In a residential colony, people of different income groups live together. The best retail shopkeeper is one who maintains his stocks and caters the needs of the various classes and customers. देखिए इनकम साइकिल क्या होता है, इस रेसिडेंशियल कॉलोनी में लोग जो हैं डिफरेंट इनकम होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है. तो जो बेस्ट रिटेल शॉपकीपर होता है वो मेंटेन करके रखता है उसी टाइप के स्टॉक्स को भी. ठीक है, रिटेल मार्केट्स एंड आर everyday needs. We need many things in our daily life. As soon as we get up in the morning, we want tea and newspaper. हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. जैसे हम सुबह उठते हैं हमें टी चाहिए होता है, न्यूज़पेपर चाहिए होता है. Then we need toothpaste and toothbrush to clean our teeth. Similarly, soap, shampoo, oil and cream to freshen ourselves and comb to dress our hair.
We also need garments to wear and get ready for the daily work. We take breakfast before leaving the work, and for this we need eatables like bread, butter, eggs, cheese, jam, tea, कॉफ़ी एंड मिल्क. ठीक है, अब सुबह उठते ही चाय चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, उसके बाद आप अपने टीथ ब्रश करते हैं, उसके लिए ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए. नहाते हो तो तब आपको शैम्पू चाहिए, ऑयल चाहिए, सोप चाहिए. ओके, उसके बाद आप ड्रेसअप होते हो, कॉम चाहिए आपको हेयर अपने कॉम करने के लिए. ओके, और ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ईटेबल्स जैसे कि ब्रेड, बटर, एग्स, चीज़. ओके, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इज क्वाइट लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ आवर डेली वर्क. Children needs books, notebooks, stationery, etc. for their school. Employed people also require many articles according to their jobs. All these things are available in the retail market often located nearby. देखिए, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए. ओके, और अपने जॉब के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयड पीपल हैं उनको भी सामान चाहिए. ओके, देयर आर सेपरेट शॉप्स फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, confectionery, cold drinks, sweets, groceries, stationeries, etc. Some retail markets have service shops also. Example, some retail markets have service shops also. Example, barbers, okay, tailors, dry cleaners, auto repairing, electronics repairing, chemist shops, doctors, क्लिनिक एक्सेट्रा. ओके, देखिए बहुत सारी शॉप्स होती हैं मार्केट में, जो जितनी भी हमें नीड्स होती हैं ये सारी चीज़ें हमें मार्केट में मिल जाती हैं. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्वीट्स, ग्रोसरी, स्टेशनरीज, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. उसके अलावा जैसे बार्बर की शॉप होती है, टेलरिंग की होती है, ऑटो रिपेयरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, केमिस्ट शॉप्स होती हैं, इन पे भी हमें ज़रूरत का सामान मिल जाता है. ओके, रिटेल मार्केट ओपन 6 days a week, यूजुअली बिटवीन 9 AM to 8 PM. The chemist shop however remain open for more time, so the medicines are available for patients. Thus a market in our neighborhood provide useful service to us. ठीक है, अब देखिए रिटेल मार्केट जो है वो 6 दिन खुलती है. ओके, हफ्ते में 6 दिन खुलती है, एक दिन बंद रहती है, और टाइमिंग सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक है. वहीं केमिस्ट की शॉप जो है वो ज़्यादा टाइम तक खुलती है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो कभी भी बीमार हो सकते हैं, उनको ज़रूरत होती है दवाइयों की. ओके, होलसेल मार्केट. Retail shopkeepers bring different articles for selling to their customers from the wholesale market. The wholesalers keep different articles in bulk because the retailers buy things from them in large number of quantity and in attractive rates. ठीक है, देखिए जो होलसेलर्स होते हैं वो डिफरेंट आर्टिकल्स को बल्क में खरीदते हैं रिटेलर से. ओके, चेन ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑब्जर्वेबल होलसेल मार्केट. If you happen to visit a wholesale market for vegetables, fruits, grains, you will observe a chain of activities going on there. You will find trucks loaded of vegetables, fruits, grains and unloading sometimes. Retailers purchase these items, especially vegetables and fruits, which are usually auctions daily. The retailers then load these items in hand-driven carts or thelas to be sold to the consumers. Okay, देखिए आप मार्केट जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, होलसेल मार्केट जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट और ग्रेन्स मिलते हैं. कई बार आप देखते हैं कि ट्रक्स खड़े होते हैं, उनमें से अनलोड हो रहा होता है वो सारा सामान. ओके, द सीन ऑफ द होलसेल फ्रूट मार्केट डिपेंड्स ऑन द सीजन व्हेन सीजनल फ्रूट्स अराइव इन द मार्केट. इन समर्स यू कैन फाइंड मैंगोज, मेलन्स, वाटरमेलन्स, while in winters apples, oranges, guava, चीकू एक्सेट्रा आर अवेलेबल. तो होलसेल जो मार्केट होती है उसमें जो फ्रूट्स या फिर कोई भी एडिबल चीज़ अवेलेबल होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द सीजन. ओके, तो यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो रही है, तो समर्स में मैंगोज, मेलन्स, वाटरमेलन्स होते हैं, वहीं विंटर्स में एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवा, चीकू अवेलेबल होता है. ओके, we know that all the fruits are not grown within a single state. In fact, these come from different states. For example, apples are grown in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Okay, हमें पता है जो फ्रूट्स है ये एक स्टेट में नहीं उगते हैं. वहीं एप्पल्स की बात हो रही है, एप्पल्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आते हैं. ओके, they have to pass through many stages involving many activities before reaching us. First, the growers grow the fruits. When the fruits ripen, they are
packed in baskets and then sent to different destinations by the train or trucks. For the transport of perishable fruits, trucks are preferred. These fruits are then unloaded to the wholesale markets. The retailers, fruit sellers and daily vendors buy the fruits in the required quantity and further sell it to the customers. देखिए, क्योंकि ये अदर स्टेट से आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इन्हें उगाया जाता है, फिर जब ये पक जाते हैं तो इन्हें बॉक्सेस में पैक किया जाता है और ट्रक्स का यूज़ किया जाता है मेनली इन्हें लोड करके दूसरे स्टेट्स में पहुंचाने के लिए. उसके बाद इन्हें अनलोड किया जाता है होलसेल मार्केट में और उसके बाद जाके कहीं इन्हें बेचा जाता है. ओके, नाउ थिंकिंग शॉर्ट. मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग अलोन. डिस्कस, ये आप खुद से करेंगे. रोल ऑफ intermediaries between the produce of the farms, orchards and the consumers. Many intermediaries or agents perform a major role. Most of the times there are 3, 4 or even more intermediaries. Intermediaries make possible the flow of products from producers to buyers by performing the following function. Okay, देखिए, इंटरमीडिएरीज जो होते हैं ये पॉसिबल करते हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, किसके थ्रू? बाय प्रोड्यूसर टू बायर्स. क्या कुछ फंक्शंस हैं जो ये फॉलो करते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज इस पूरे डायग्राम में बताया हुआ है. ओके, ट्रांजैक्शनल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग बिकॉज दे स्टॉक merchandise in anticipation of sales when price goes up. Okay, ट्रांसैक्शन फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है बाइंग के टाइम पे. ओके, और सेलिंग के टाइम पे एक रिस्क टेकिंग होता है. ओके, और इस टाइम पे क्या होता है, सेल्स की जो प्राइस है वो ऊपर भी जा सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं. अ लॉजिस्टिकल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पैचिंग डिफरेंट आइटम्स. लॉजिस्टिक फंक्शन होता है जो इन्वॉल्व होता है गैदरिंग, स्टोरिंग और डिस्पर्सिंग में. ओके, impact of intermediaries on farmers. It is not possible for the farmers to bring his produce in the market and sell it directly to the customers. In that case, he would have to arrange for transporting his produce in the local market and then take to the help of the selling agents who auction the product among डिफरेंट बायर्स. देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी एक फार्मर के लिए कि कोई भी प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद मार्केट में डायरेक्टली आके कस्टमर्स को सेल कर रहा है. ओके, इस केस में क्या करना होता है, उन्हें अरेंज करना होता है ट्रांसपोर्टिंग. ओके, प्रोड्यूस करनी होती है लोकल मार्केट में. ओके, और सेलिंग एजेंट्स की हेल्प भी लेनी होती है ताकि वो डिफरेंट बायर्स को अपना सामान बेच सकें. ओके, इन केस द प्रोड्यूसर लिव्स फार अवे फ्रॉम द मार्केट इन अनदर सिटी और स्टेट, देयर अराइजेस द नीड ऑफ एन एजेंट हु बायज द प्रोड्यूस in bulk and arranges for the transport of such produce to distant wholesale markets. The intermediaries thus play an important role in the wholesale market. The chain from the grower to the customer runs as follows: producer, agent, wholesale, retailer, customer. देखिए, अगर कोई एक ऐसे प्लेस पे है, ओके, जो प्रोड्यूसर है ऐसी प्लेस पे है जो कि मेन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, तो वो इंटरमीडिएटर का यूज़ करता है जो कि उस पूरे सामान को उससे ख़रीदता है और ट्रक या किसी भी एक व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके उसे वहाँ से लेके आता है और होलसेल मार्केट में लेके जाके उसे बेच देता है. ओके, तो इसकी एक चेन है जो यहाँ पे बताई गई है. पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और लास्ट में जाके कस्टमर उसे खरीदता है. ओके, नाउ थिंकिंग शॉर्ट. हाउ कैन अ फार्मर गेट गुड प्राइस इन हिज प्रोड्यूस? ये आप खुद से करेंगे. नाउ लेट्स गेट टू द एक्सरसाइजेस. Tick the correct answer. Market is defined as a place where goods, services and information are exchanged for money. इसका आंसर है मनी. ओके, बाकी के आप खुद से करेंगे. आगे बढ़ते हैं. Fill in the blanks. In a retail market we find specialization of commodities. ओके, बाकी आप खुद से करेंगे. Write true or false. People generally buy things by paying in cash. No, क्रेडिट में भी वो खरीदते हैं इसलिए वो false है. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. डिफाइन अ मार्केट. मार्केट क्या होती है? जहाँ पे एक कस्टमर को जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, जो उनके यूज़ की होती हैं, पर्सनल यूज़ की होती हैं, ओके, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं. एक मार्केट वो एरिया होता है जो कि जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि वो हॉस्पिटल हो या फिर शॉप्स हो, कोई भी चीज़ हो जो कि उनको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, उसे मार्केट कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. मेंशन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पीपल्स एक्सेस टू मार्केट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पीपल के एक्सेस को मार्केट तक अफेक्ट करते हैं? वो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, उसके बाद है क्रेडिट्स हैं आपके, उसके बाद क्वालिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो इसके कुछ 6 फैक्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पे आपको मेंशन करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं.
out of the box. Consumer is exploited in the market. Do you agree with the observation? Think of the market most preferred by the family. What do you think of the reasons of their choice? ये आप खुद से करेंगे.